नमस्कार, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस पेपर में स्वागत है। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर की आखिरी थ्योरी पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसकी दो थ्योरी पढ़ी थी, ट्रेडिशनल थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। तो जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं, ये सारी अप्रोच डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट को लेकर चल रही है। आज हम इसकी आखिरी थ्योरी पढ़ेंगे जो है मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच, इसे MM हाइपोथेसिस भी कहते हैं। So MM hypothesis identical with the net operating income approach. Net operating income approach if taxes are ignored. However, when corporate taxes are assumed to exist, their hypothesis is similar to the net income approach. So आप देखोगे कि ये जो थ्योरी है ये नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों को ही कंसिडर करती है, बट अलग अलग कंडीशन में। अगर आप ये मानते हो कि देयर इज नेट कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये अप्रोच काम करती है नेट इनकम अप्रोच की तरह, और अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो पहली कंडीशन है कि इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, अगर कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं है तो क्या होगा। तो the theory proves that the cost of capital is not affected by change in capital structure, or say that debt equity mix is irrelevant in determination of total value of the firm. The reason argued that though debt is cheaper to equity with increased use of debt as a source of finance, the cost of equity increases. This increase the cost of equity offset the advantage of low cost of debt. Thus, although the financial leverage affect the cost of equity, the overall cost of capital remain constant. The theory emphasizes the fact that the firm's operating income is determined of its total value. The theory further propounds that beyond a certain limit, the debt or cost of debt increases, but the cost of equity falls, thereby again balancing the two costs. The opinion of Modigliani and Miller, two identical firms in all respects except their capital structure, cannot have different market values or cost of capital because of the arbitrage process. In case two identical firms except for their capital structure have different market value, arbitrage, and the investor will engage in personal leverage. That is, they will buy equity of the other company in preference to the company having lesser value as against the corporate leverage, and this will again render the two firms to have the same total value. ये अप्रोच जो है वो कुछ एजम्पशन के बेस पर है। जो है फर्स्ट एजम्पशन है देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स, पहला एजम्पशन है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं है। दूसरी है देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड है इन्वेस्टर एक्ट रैशनली। फोर्थ, द एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ ऑल द फर्म हैव आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। द कट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म इज कैपिटलाइजेशन रेट। द रिस्क to investors depend upon the random fluctuation of expected earning and the possibility that the actual value of the variable may turn out to be different from their best estimates. And last, all earnings are distributed to the shareholder. MM approach, in the absence of corporate tax, the theory of irrelevant of financial mix has been presented in the following figure. अब वो कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है तब ये थ्योरी कैसे मानी जाएगी। आप देखेंगे इसमें ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लाइन है, ये है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की लाइन, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है क्योंकि है नहीं। तो जैसे जैसे आप इस तरफ से डिबेंचर बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिरती जाती है, और दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं। तो देयर इज़ नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब है इसका बी पार्ट।
यानी व्हेन द कॉर्पोरेट टैक्स आर एज्यूम टू एग्जिस्ट, कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स है तब क्या करना है, थ्योरी ऑफ रिलेवेंस, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेवेंस। द मॉडिग्लानी एंड मिलर द आर्टिकल इन 1963 हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज or the cost of capital will decrease with the use of debt on account of deductibility of interest charges for tax purpose. Thus, the optimum capital structure can be achieved by the maximizing the debt mix in the equity. According to the MM approach, the value of a firm unlevered can be calculated as, यानी पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट वो तो कह रहा था कि आप चाहे डेट कंपोनेंट कितना ही बढ़ाओ या घटाओ, वैल्यू की फर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कंडीशन क्या है, नो कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसके सपोर्ट में हो गया, ये हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम के सपोर्ट में, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी उसके सपोर्ट में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स है तब क्या करना है, तो ये थ्योरी सपोर्ट करती है जो सबसे पहली थ्योरी थी नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी में ये कहते हैं अगर आप डिबेंचर बढ़ाओगे तो आपके टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। तो ये इसमें यही कह रहा है कि टैक्स पर्पज से उसको एडवांटेज मिलेगी, वो बेनिफिट पाएगा। तो इसको यहाँ समझाया, देखो वेयर वैल्यू वी इज वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, यानी अगर किसी बार डिबेंचर नहीं तो उसकी है, एंड टी डी इज अ डिस्काउंटेड परसेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम द टैक्स ऑफ डिडक्टिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट चार्जेस, टी इज द रेट ऑफ टैक्स एंड डी इज द क्वांटम ऑफ द डेट यूज्ड इन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लिवर्ड एंड अनलिवर्ड फर्म अंडर द MM मॉडल हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ इनके दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको बुक में एज इट इज़ मिल जाएंगे, फिर भी आप इनको पढ़ लें। और इसी के साथ में ये इसकी आखिरी लास्ट थ्योरी जो थी वो पूरी हुई है, मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, इसे कहते हैं MM अप्रोच या MM हाइपोथेसिस। इसी टॉपिक के साथ में अपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, जो 4 थ्योरी है वो पूरी हो चुकी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी FM की बुक में से इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करना पड़ेगा हाथ से। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं इसका जो भी कंटेंट है बुक जो PDF फाइल है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो इन थ्योरी को ढंग से पढ़ें, समझें और उनके न्यूमेरिकल आप खुद हाथ से सॉल्व करें। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलें।